start the Unit 5 of Company Accounts of Accountancy. Redemption of preference shares. So, redemption of preference shares. Now, definition is repayment of an obligation at predetermined amounts and timings. Contractual obligation requires the company to redeem preference shares within or at the end of a specified period at an agreed price. Investor returns. Shareholders receive periodic dividends during the tenure of the preference shares along with the return of their investment at redemption. If limited by shares, then redeemable it is maximum 20 years. We have read it in redeemable preference shares types before. Now, purpose of issuing redeemable preference shares are flexible dividend payments. Unlike debentures or loans, dividends are only paid when the company makes a profit. Alternative financing option useful in a weak primary market में यूजफुल है. अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स. रिडेम्पशन अश्योरेंस मेक्स इन्वेस्टमेंट मोर अपीलिंग स्पेशली फॉर नॉन ट्रेडेड शेयर्स. एंड देन वी हैव attracts investors like redemption assurance makes investment more appealing especially for non-traded shares. And capital surplus management allows the redemption when excess funds cannot be used profitably. Then we have section 55 में provisions of the Companies Act में section 55 में we have three things. Authorization required. A company can issue redeemable preference shares if permitted by the articles, usually redeemable within 20 years. Sources of redemption होता है divisible या फिर distributable profits available for dividends, proceeds from fresh issue of shares. उसके बाद आता है redemption condition में shares must be fully paid before redemption. redemption से पहले जो shares है वो fully paid होने चाहिए. Premium on redemption for prescribed companies as per section 133 must be provided from profits. For other companies can be provided from profits. For securities premium account, that is section 52. Capital redemption reserve requirement में if shares are redeemed from profits an equal amount to the face value of redeemed shares must be transferred to the CRR account. दैट इज़ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है उसका फेस वैल्यू. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का रिक्वायरमेंट, अगर शेयर्स रिडीम कर रहे हैं प्रॉफिट से तो एक इक्वल अमाउंट टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीम्ड शेयर्स मस्ट बी ट्रांसफर टू द CRR अकाउंट. CRR कैन बी ओनली यूज टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स और राइट इशू में. राइट इशू में यूज़ नहीं होता, बोनस शेयर्स में यूज़ होता है CRR और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का. दिस इंश्योर्स नो रिडक्शन इन शेयर होल्डर्स फंड, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स बाय रिक्वायरिंग फ्रेश इशू, फ्रेश कैपिटल और प्रॉफिट रिटेंशन. नोट, ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर हैव बीन सॉल्व्ड ऑन द बेसिस दैट द कंपनीज रेफर्ड टू द क्वेश्चंस आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 and comply with the accounting standards prescribed for them. Accordingly, the balance in the securities premium account has not been utilized for the purpose of premium payable on redemption of preference shares. यानी कि सेक्शन 133 के अनुसार हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज़ करेंगे फ्री रिजर्व्स का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ रैशनल है यानी रीजंस हैं बिहाइंड रिडेम्पशन के प्रोविजन के. तो हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर्स इंटरेस्ट, इंश्योर्स शेयर होल्डर्स फंड्स रिमेन इंटैक्ट आफ्टर रिडेम्पशन. कैपिटल रिप्लेसमेंट मेथड्स, रिडेम्पशन वाया फ्रेश इशू, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एंड टैंजिबल एसेट, फिर है रिडेम्पशन वाया प्रॉफिट्स यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स दैट वुड यानी कि लॉक करते हैं हम लोग, प्रॉफिट्स को लॉक करते हैं. प्रॉफिट्स दैट वुड हैव बीन पेड एज डिविडेंड्स आर रिटेन्ड एंड ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR में हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं. कैपिटल रिप्लेसमेंट मेथड में शेयर कैपिटल को रिड्यूस करा तब तक इंक्रीज करो, जितना रिड्यूस किया उतना इंक्रीज करो. तो रिडेम्पशन में अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू बोनस शेयर्स. जो हमारा CRR है वो तो अल्टीमेटली बोनस शेयर्स में कन्वर्ट होगा ही, तो वो तो हमारा शेयर कैपिटल बढ़ेगा ऐसे भी. इफेक्ट क्या होता है CRR का? प्रिवेंट्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मेकिंग इट नॉन डिविजिबल, कैन ओनली बी यूज्ड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, ensuring the retained profits eventually convert into share capital, maintaining financial stability. One of the methods of redemption of preference shares is to use proceeds of a fresh issue of shares. A company can issue new shares, equity shares or preference shares, and the proceeds from such new shares can be used for redemption of preference shares. यानी कि एक मेथड है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, तो यूज़ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. एक कंपनी जो इशू करता है न्यू शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम सच न्यू शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. उसके बाद द प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस. जो हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स के साथ जो प्रोसीड्स जो है वो नहीं यूटिलाइज किया जा सकता है उस पर्पज़ के लिए. ओके, द प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस.
यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे कि डाइल्यूशन वगैरह। बिफोर रिडम्पशन लाइबिलिटी का जो सिक्योरिटी है दैट इज़ कैपिटल अपॉन क्रेडिटर वाला जो चीज़ है, कैपिटल अगर 100 है क्रेडिटर 20 है तो 5 टाइम्स हमारे पास है। बट अगर आप रिप्लेस कर रहे हो उसको कवर करने के लिए, अगर रिडम्पशन कर रहे हो तो कैपिटल हमारा कम हो जाता है। लाइक अगर 20 कम हो गया तो ये 100 हमारा 80 हो जाएगा, तो 80 अपॉन 20 4 टाइम्स हो गया ना। तो यहाँ पे 4 टाइम्स जो है ना, ये 5 टाइम्स से 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब वही है कि जो हमारा नॉन डिविजिबल कैन बी eventually converted into share. A company can issue new shares, equity shares and proceeds from the इसका मतलब यही है कि जो हमारा जो रिडम्पशन से पहले जो सिक्योरिटी मिल रहा था क्रेडिटर को वो ज़्यादा था, कि कैपिटल तो अभी ज़्यादा है तो पे भी ज़्यादा होगा, लेकिन रिडम्पशन के बाद क्योंकि कैपिटल कम हो गया तो उनका जो भरोसा है वो भी थोड़ा कम हो गया। यही मतलब है। अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या हैं? अगर आप न्यू शेयर्स इशू कर रहे हो पार पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और न्यू शेयर्स अगर प्रीमियम पे इशू करे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फॉर ट्रांसफरिंग नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स रिडीमेबल आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू CRR अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट्स को लॉक करने की एंट्री है हमारे पास। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एनी अदर डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये हमारी जो 3 एंट्री थी, ये था सिक्योरिंग ऑफ फंड्स की एंट्री। उसके बाद हम लोग ड्यू करते हैं एंट्री, मतलब हम लोग वो को ड्यू करते हैं ना शेयर कैपिटल को। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ड्यू कर रहे हैं टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, यानी कि ये दोनों जो एंट्री थी ड्यू की एंट्री थी। ओके, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट है ना, इसको बाद में हम लोग राइट ऑफ भी कर देते हैं। अब ये जो है पे करने की एंट्री है। व्हेन पेमेंट इज मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन अगर आप रिडम्पशन करो प्रीमियम पे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर जो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट है वो टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। जो अज्यूम करते हो सेक्शन 133 में हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज़ नहीं किए हैं वो बेसिकली 7 एंट्री हमारे मेन एंट्रीज हो गए। न्यू शेयर और इशूड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रीमियम पे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो आप लॉक करोगे उसकी एंट्री। प्रेफरेंस अगर रिडीम करो पार पे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम तो यहाँ पे डेबिट होगा जो बाद में जा करके क्रेडिट होकर के इस तरह राइट ऑफ हो जाएगा। पेमेंट करोगे तो पेमेंट मिल जाएगा प्रेफरेंस शेयर को तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बाद में तो लॉक वही वाला। रीजंस क्या होती है इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स के? तो परमानेंट कैपिटल नीड, इक्विटी शेयर्स आर प्रेफरेबल ओवर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू टू अ फिक्स्ड डिविडेंड ऑब्लिगेशंस ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, insufficient profits when profits available for dividends are inadequate, liquidity issue when the company lacks sufficient cash reserves। उसके बाद advantages of redeeming preference shares via equity shares, no cash outflow, avoids immediate or future cash payments, premium valuation, new shares may be issued at premium boosting capital, shareholder retention, existing shareholders maintain equity interest। और disadvantages होते हैं of redeeming preference shares via equity issue, earning dilute हो जाता है हमारा, future earning per share में decrease, change in shareholding हो जाता है if issued to outsiders, ownership structure shifts, this can be mitigated by issuing shares through a right issue to existing shareholders, ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बुक, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यूनिट ओवरव्यू देख लो। मेथड्स आते हैं हमारे पास 3 तरीके के, बाय इशू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इधर ए और बी, यानी कि आपके पास 2 ही चीज़ है, या तो आप फ्रेश इशू ऑफ शेयर करो या फिर प्रॉफिट्स को लॉक करो। ये आपका प्रॉफिट को लॉक करने की एंट्री मैंने बता दिया है, और या तो आप फ्रेश इशू कर दो या तो दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर लो। ओके, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मे बी applied by the company towards issue of unissued shares of the company to be issued to members of the company as fully paid up bonus securities, to write off preliminary expenses of the company, to write off expenses of or commission paid or discount allowed or any of the securities of debentures of the company, to provide for premium on redemption of redeemable preference shares या फिर debentures of the company for the purchase of its own shares और security shares। तो ये हमारे पास जो 5 चीज़ हैं इसमें हम लोग अपना प्रेफरेंस शेयर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं सेक्शन 52 के अनुसार। नोट करना, सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कांट अप्लाई द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फॉर द पर्पसेस बी एंड डी, यानी कि ये जो बी है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, और डी जो है टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 133 के अनुसार ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करा एएस
के साथ। तो यही हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि सर्टन क्लासेस ऑफ कंपनीज whose financial statement comply with accounting standard as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 can't apply the securities premium account for the two purposes। ठीक है, यही हम लोग इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। इंट्रोडक्शन इज द सेम जो मैंने बताया। उसका पर्पस क्या होता है? इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का अ कंपनी में इशू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। इट इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस इन डल प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो इन अ डल प्राइमरी मार्केट it is a proper way of raising finance in a dull primary market. A company may face difficulty in raising share capital as its shares not traded on the stock exchange. Potential investors who may hesitate in putting money into shares that cannot easily be sold may be encouraged to invest if the shares are redeemable by the company. The preference shares may be redeemed but when there is a surplus, अगर surplus है of the capital and the surplus funds cannot be utilized in the business for profitable use। अगर profitable use में नहीं यूज़ हो रहा है तो द प्रेफरेंस शेयर्स में बी रिडीम्ड व्हेन देयर इज अ सरप्लस ऑफ कैपिटल। और जो सरप्लस फंड्स है वो कभी भी यूटिलाइज नहीं हो सकता बिजनेस से प्रॉफिटेबल यूज़ के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं इशू। नो डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। अगर कोई भी डिविडेंड आपको पे नहीं करना है, अगर लॉस है या फिर नो प्रॉफिट है, वेयर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिवेंचर्स और लोन इवन इन द केस ऑफ लॉस। अगर दूसरे शब्दों में प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड कंटिन्यूज टू बी रिगार्ड एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिमिलर ट्रीटमेंट इज गिवन टू इक्विटी शेयर्स एज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स व्हिच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इन इंडिया द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स is governed as Section 55 of the Companies Act 2013. Provisions of the Companies Act of 55, Section 55. A company limited by shares, if so authorized by its articles, may issue preference shares, which at the option of the company are liable to be redeemed within a period normally not exceeding 20 years from the date of their issue. It should be noted that no shares can be redeemed except out of divisible or distributable profits, यानी कि out of the profit of the company which would otherwise be available for dividend, जो dividend देने के लिए available होगा बाद में, और out of the proceeds of fresh issue of shares made for the purpose of redemption। यानी दो मेथड जो बताया, या तो फ्रेश इशू या तो प्रॉफिट्स को लॉक करने की एंट्री। नो सच शेयर्स कैन बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप, यानी फुल्ली पेड अप होना जरूरी है ताकि आप जो है शेयर को रिडीम कर ले। ओके, इन केस ऑफ सच क्लासेस ऑफ कंपनीज में भी प्रिस्क्राइब उस फाइनेंशियल जो कि सेक्शन 133 के अंदर है, वो प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम को नहीं उपयोग करेगी आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बिफोर द शेयर्स आर रिडीम्ड, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द प्रीमियम if any payable on redemption of any preference shares issued on or before the commencement of this act by any such company shall be provided or for or out of profits of the company or out of company's securities premium account before such shares are redeemed. In case of other companies not falling under one above, जो कि ये वाला पॉइंट है यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट, इस पे अगर नहीं वो है तो नॉट फॉलिंग अंडर वन अबव, द प्रीमियम इफ any payable on redemption shall be provided for out of the profits of the company or out of the company's securities premium account before such shares are redeemed. Refer to the note given in para 5.4.1 for the basis applied in the illustration in this chapter. Where any such shares are proposed to be redeemed out of profits of the company, there shall, out of divisible profits, that is the profits which would otherwise have been available for dividends, be transferred to the reserve account to be called capital redemption reserve account, a sum equal to the nominal amount of the shares redeemed, and the provisions of the act relating to the reduction on the share capital of the company shall, except as provided in section, apply as if the capital redemption reserve account were to be paid. Were the paid up share capital of the company, the utilization of CRR account is further restricted to the issuance of fully paid up bonus shares only, which we have learnt in the previous unit. For the legal provision outlined above, it is apparent that on the redemption of redeemable preference shares out of accumulated divisible profits, it will be necessary to transfer the capital redemption reserve account an amount equal to the amount repaid on the redemption of preference shares on account of face value less proceeds of a fresh issue of shares made for the purpose of redemption. The object is that with the repayment of redeemable preference shares, the security for creditors, bankers, etc. should not be reduced. At times, a part of the preference share capital may be redeemed out of accumulated divisible profits and the balance out of a fresh issue. Methods of redemption of fully paid up shares. Redemption of preference shares means repayment by the company of the obligation on account of shares issued. Methods क्या है रिडेम्पशन के फुल्ली पेड अप शेयर्स के? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है मस्ट बी रिडीम्ड अगर मैक्सिमम पीरियड नॉर्मली 20 ईयर्स है अलाउड अंडर द एक्ट। दस अ कंपनी के नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इट इंश्योर्स दैट देयर इज नो रिडक्शन इन शेयर होल्डर्स फंड्स ड्यू टू रिडम्पशन एंड दस द इंटरेस्ट ऑफ शेयर आउटसाइडर्स। जो आउटसाइडर्स का जो इंटरेस्ट है, जो मैंने बताया एग्जाम्पल दे करके, इस केस में इफ़ यू रिमेंबर, इस केस में
जो आउटसाइडर्स का जो है ये वाला कैपिटल अपॉन क्रेडिटर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, इसका कारण नहीं अफेक्ट होता है उनके आउटसाइडर्स के वैल्यू। फॉर दिस इट रिक्वायर्स दैट ईदर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज मेड, या तो फ्रेश इशू शेयर्स का कर दो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स को रिटेन, या तो लॉक कर लो प्रॉफिट को, लॉक कर दो प्रॉफिट को, ट्रांसफ़र कर दो उसको, उस लॉक्ड प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, जो कि बाद में यूज़ होगा फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। ठीक है, द रैशनल यानी रीजन बिहाइंड दीज प्रोविजंस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स टू हुम द अमाउंट इज पेएबल बिफोर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पहले जिसका पेमेंट बाद में जो करना आउटसाइडर्स का, उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दो चीज़ हुआ है। दस द इंटरेस्ट आउटसाइडर्स इज प्रोटेक्टेड इफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल redeemed is substituted, thus ensuring the same amount of shareholders fund. In case of redemption of preference shares out of proceeds of fresh issue of shares, replacement of capital and tangible assets is obvious. If redemption is done out of distributable profits, replacement of capital is ensured in an indirect manner by retention of profit by transfer to capital redemption reserve. In this case, the amount which would have otherwise gone to shareholders in the form of dividend is retained in the business। जो डिविडेंड में जा सकता था उसको रिटेन किया गया बिजनेस में और उसको यूज़ किया गया फॉर सेटलिंग द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दस देयर इज नो एडिशनल ड्रेन Thus, there is no additional drain from the net assets of the company. The transfer of divisible profits to capital redemption reserve makes them non-divisible profit. अब वो non-divisible profit बन गया as capital redemption reserve can be only used for issue of fully paid up bonus shares. Profits retained in the business, profit को lock करने वाला business ultimately जो है वो convert हो जाता है share capital में ही, जो bonus issue हम लोग share करेंगे तो। Security cover available to outside stakeholders depend upon called up capital as well as uncalled capital to be demanded by the company as per its requirements. To ensure that the interest of outsiders are not reduced, Section 55 provides for the redemption of only fully paid up shares. ठीक है, from the above paras, it can be concluded that the gap created in the company's capital by the redemption of redeemable preference shares must be filled in by the proceed of या तो fresh issue कर दो या फिर capitalization of undistributed profits कर दो, जाके CRR में convert हो जाएगा, या फिर दोनों में से कोई भी combination you can do. Okay, redemption of preference shares by fresh, अगर fresh issue shares का कर रहे हो तो कैसे redemption करोगे? One of the methods for redemption of preference shares is to use the proceeds of a fresh issue of shares. A company can issue new shares यानी कि equity shares of preference shares and the proceeds from such new shares can be used for redemption of preference shares. The proceeds from issue of debentures cannot be utilized for the purpose. A problem arises when a fresh issue is made for the purpose of redemption of preference shares at a premium. अगर premium पे है तो the point to ponder is the point to think is that whether the proceeds of a fresh issue of shares will include the amount of securities premium for the purpose of redemption of preference shares. Therefore, securities premium account section 52 of the Companies Act provides the following. ये सब जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 5 चीज़ों के लिए नोट क्या दिया 133 अगर है तो वो बी और डी को नहीं फुलफिल कर पाएगा। देख लो, बी एंड डी को वो फुलफिल नहीं करेगा एक्सेप्ट द अबव प्रिस्क्राइब्ड वे इन विच सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज यूटिलाइज्ड विल बी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ। Thus, the proceeds of fresh issue of shares will not include the amount of securities premium for the purpose of redemption of preference shares. Reasons क्या है issue of new equity shares के? A company may prefer issue of new equity shares for the following reasons. When the company has come to realize that the capital is needed permanently and it makes more sense to issue equity shares in place of redemption preference shares as preference shares carry a fixed rate of dividend. यानी कि अगर company has come to realize, उनको पता चल गया कि जो capital is needed permanently, capital permanently चाहिए and it makes more sense to issue equity shares in place of redeemable preference shares. आप equity shares को issue कर दो या मतलब in place of redeemable preference shares. इस preference shares जो है वो एक fixed rate of dividend carry करते हैं जो कि हमें देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद है B हमारे पास which is when the balance of profit which would otherwise be available for dividend is insufficient. अगर वो balance of profit अगर insufficient है तो, या फिर when the liquidity position of the company is not good enough. Advantages क्या है of redemption of preference shares by issue of fresh equity shares? ये advantages होते हैं नो कैश आउटफ्लो ऑफ मनी नाउ और लेटर, यानी कि कोई भी आउटफ्लो नहीं होता है मनी का, या फिर आज या तो बाद में। न्यू इक्विटी शेयर्स में भी वैल्यूड एट प्रीमियम, जो नए इक्विटी शेयर्स है वो प्रीमियम पर वैल्यू किए जा सकते हैं। शेयर होल्डर्स रिटेन देयर इक्विटी इंटरेस्ट, जो शेयर होल्डर्स है वो अपना इक्विटी इंटरेस्ट रोक के रखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स। द डिसएडवांटेजेस आर देयर विल बी डाइल्यूशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, शेयर होल्डिंग इन द कंपनी इज चेंज्ड इफ द फ्रेश इशू इज मेड टू आउटसाइडर्स, इन केस द फ्रेश इशू इज मेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स in proportion to the shareholding that is rights issue. The disadvantages of change in shareholding pattern can be mitigated, यानी कि
डिसएडवांटेज ये हैं कि डाइल्यूशन हो जाएगा फ्यूचर अर्निंग का, शेयर होल्डिंग कंपनी का चेंज हो जाएगा इफ़ द फ्रेश इशू इज़ मेड टू आउटसाइडर्स, अगर आउटसाइडर्स को दिए तो, अगर फ्रेश इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाएगा इन प्रोपोर्शन टू देयर राइट्स इशू एज शेयर होल्डिंग। डिसएडवांटेज ऑफ चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न कैन बी मिटिगेटेड, रोका जा सकता है। अकाउंटिंग एंट्रीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर इक्विटी शेयर न्यू शेयर्स को इशू करो पार पे तो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रीमियम पे तो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करो पार पे तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट, अगर प्रीमियम पे तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडीमेबल प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, अगर पेमेंट कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर एडजस्टमेंट करो प्रीमियम और रिडम्पशन का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। इलस्ट्रेशन हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपी ईच, हाँ फुली पेड अप है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार पे ही कर रहे हो बाई इशू ऑफ सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स, यानी कि पहला वाला मेथड प्रॉफिट को लॉक नहीं कर रहे हैं, ऑफ 10 रुपी ईच पेड एट पार, आपको एंट्री पास करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट 5 लाख रुपीज़, क्योंकि हमारे पास 10 रुपये का है, सॉरी 100 रुपी ईच है, 100 रुपी ईच है हमारे पास, और आप कर रहे हो इसको सफिशिएंट एंट्रीज इक्विटी शेयर्स आप 10 रुपये का इशू कर रहे हो। आपने 50,000 जो है इक्विटी शेयर्स आपने 5 लाख देखा, 5,000 इंटू 100 आपका 5 लाख है, 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 करो तो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपी ईच आ गया फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन, और यहाँ पे 5 लाख आ गया। ये 5 लाख जो है ये कैसे आया? सबसे पहले तो आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू है वो है 5,000 इंटू 100 जो कि आपका 5 लाख है। ओके, आपको इशू करना है कितना? इक्विटी शेयर्स 10 रुपये का, तो आप 5 लाख को डिवाइड कर दोगे 10 रुपये से, आपका आ जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर्स। ये आपके इक्विटी शेयर्स के वैल्यू हो जाएंगे। ये इसका मतलब है कि ये 50,000 इंटू 10 है, ना कि 5,000 इंटू 100। ठीक है, दिस नीडेड सम क्लैरिफिकेशन, दैट इज वाई आई गिव 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट जो कि 5 लाख आ जाएगा। यहाँ पर ये 5 लाख आ जाएगा क्योंकि आपने पहले ड्यू किया, उसके बाद मिल गया, तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट 5 लाख। तो बेसिकली 3 एंट्री हुए। सबसे पहले तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो किया वो बैंक शेयर इशू किया, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कि आपने रिडीम कर दिया वो, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक जो कि आपने अमाउंट पे किया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। इलस्ट्रेशन 2 है, सी लिमिटेड के पास 10,000 है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपी ईच, यानी कि आपका प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू कितना हो गया? एक तो 10,000 ऊपर से ये 100, यानी कि आपके पास 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फुली पेड अप हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, आपने पार पे किया बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपी ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपी एज फुली पेड अप, यानी कि आपने करना है 10 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो यू विल बी गेटिंग हाउ मच? आपने 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 करना है, आपके पास 10 लाख, सॉरी ये आपका रुपीज़, ओके, इसको आपने 12 से अगर डिवाइड करना है तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स आ जाएगा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स आ जाएगा जो कि 10 रुपये ईच है, प्रीमियम 2 रुपया है, 12 लाख हो जाएगा, 2 रुपया का है ना, तो ये आपका 12 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 2 लाख, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 12 लाख जो है, यहाँ पे 1 लाख है ना, 1 लाख इसको छोड़ो, 1 लाख यहाँ है, 1 लाख इंटू 12 हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखो तो हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 12 लाख आ रहा है। ये जो 12 लाख है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, इसको नहीं करना था, इसको 12 से करना था। यू विल बी गेटिंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स, जो कि यहाँ पे देख लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 लाख, जो कि हमने किया, इशू किया इक्विटी शेयर्स। अब 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कि 10 लाख हमने रिडीम कर दिया, बीइंग द अमाउंट पेएबल ऑन रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जो कि 10 लाख देना था वो, ओके। अब यहाँ पे 12 लाख मत डाल देना, ठीक है। नोट क्या करना है कि अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन है 10 लाख, देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड फॉर दिस पर्पस मस्ट बी इक्वल टू 10 लाख। प्रीमियम रिसीव न्यू इशू कैन नॉट बी यूज टू फाइनेंस द रिडम्पशन, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 3 है हमारे पास, जी इंडिया लिमिटेड जो है उनके पास 9,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे, 10 रुपये ईच के, फुल्ली पेड अप। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स, वही फर्स्ट वाला मेथड। अभी तक प्रॉफिट को लॉक हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट देखो 9,000 है, 10 रुपये का है, तो ये हमारा 90,000 का प्रेफरेंस शेयर्स है। हमें क्या करना है, हमें 9 रुपये का इक्विटी शेयर इशू करना है।
तो हमारा जो है 9,000 आ जाएगा। ओके 9,000 नहीं, हमारा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर से 10 रुपये ईच। द कंपनी डिसाइड रिडीम दिस प्रेफरेंस, पार पे करना है 9 रुपी ईच फुली पेड अप। 90,000 रुपया हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का है। अगर 90,000 को आप डिवाइड कर दो 9 से, यू आर गेटिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स हमारे पास हैं। 10,000 इंटू 9 यू विल बी गेटिंग दैट ओनली। ठीक है, यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 90,000 आ गया। 10,000 इक्विटी शेयर, 9 रुपी ईच एट पार। 10% रिडीमल प्रेफरेंस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर हमारा 90,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 90,000, जो हम लोग करे थे वही है अभी तक। अगर आप मिनिमम फ्रेश इशू शेयर्स को कैलकुलेट करोगे तो कैसे, समटाइम्स एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डज नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड requires the minimum number of shares should be issued for ensure that provisions of section 55 of the Companies Act 2013 are not violated. This is done for steps as given below. In such cases, the maximum amount of reserves and surplus available for redemption is ascertained, taken into account the balances appearing in the balance sheet before redemption and additional information provided in the problem. For example, if balance of general reserve in the balance sheet is 1 lakh and additional information provides that board of directors have decided that the balance of general reserve should not be less than 40,000 यानी 40,000 से कम नहीं होना चाहिए, इस सर्कमस्टांस में हम लोग मैक्सिमम अमाउंट जनरल रिजर्व का ले सकते हैं 60,000, यानी कि 60,000 के हम लोग प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं CRR में। आफ्टर ascertaining the maximum amount of reserves and surplus available for the redemption, adjustment for premium on redemption payable out of profit is made and then compared with the nominal value of shares to be redeemed. By comparison, one gets the minimum proceeds of fresh issue as per section 55 permits redemption either out of proceeds of fresh issue or out of divisible profits. Thus, minimum proceeds of fresh issue of shares, nominal value of preference shares to be redeemed minus maximum amount of reserves and surplus available for redemption. After computation of minimum proceeds, the minimum number of shares to be issued are determined by dividing the minimum proceeds by the proceeds of one share. This is done as follows. Minimum number of shares हमारे आते हैं, minimum proceeds to comply with section 55 divided by face value of one share. Proceeds of one share mean the par value of share issued. If it is issued at par or premium, however, in the case of issue of share at discount, it refers to the discounted value. Discounted value उसको कहा जाएगा। तो minimum number of shares हमारे होते हैं minimum proceeds to comply with section 55 divided by जो face value हमारे होते हैं one share के। इस केस में मिनिमम प्रोसीड्स हो गया हमारा 60,000 जो यहाँ पे था एग्जाम्पल में, उसको डिवाइड कर दिया फेस वैल्यू से जो आएगा वो। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेटेड एज पर 3 अबव नीड्स टू बी एडजस्टेड ड्यू टू वेरियस रीजंस। फर्स्टली, शेयर्स फ्रैक्शंस कैन नॉट बी इशूड। शेयर का फ्रैक्शंस इशू नहीं किया जा सकता, बट उसका जो रेट है शेयर्स को आप नहीं इशू कर सकते। जैसे 10,000 शेयर उसको आप 2,000 3,000 ऐसे करके नहीं बांट सकते हो, लेकिन जो शेयर का जो प्राइस है 10 रुपया उसको आप तो बांट सकते हो ना। एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 2 रुपया, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, सेकंड एंड फाइनल कॉल में 3 रुपये, उस तरीके से आप तो एडजस्ट कर सकते हो। दिस इज व्हाट इट सेज। It must be appropriated to the next higher figure to ensure that provisions of section 55 are not violated. Secondly, if the examination problem states that the proceeds number of shares should be multiple of say 10 or 50 or 100, then again the next higher multiple should be considered. जो next higher multiple होगा उसे हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, तो उसके बाद हमारे पास illustration 4 है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 9 रुपी टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना था। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन 3 लाख है, 3 ही लाख है, यानी कि 2 लाख हमें फ्रेश इशू करना पड़ेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इशूज द शेयर्स टू इंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि 2 लाख हमें करना पड़ेगा। ओके, 2 लाख और हमें करना पड़ेगा। 2 लाख डिवाइड करेंगे, हमें 9 रुपये का चाहिए, तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे 2222.22 आएगा। ओके, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इन अ इशू शेयर्स इन अ मल्टीपल ऑफ 50 ओनली। मल्टीपल ऑफ 50 अगर बोला जा रहा है तो अगर इसको हम लोग ऐसे देखेंगे तो 2223 कर देंगे या फिर 50 इसको कर देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या किया गया है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से 5 लाख, मैक्सिमम पॉसिबल रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट से 3 लाख, जो कि प्रॉफिट को लॉक कर देंगे, CRR में भेज देंगे। मिनिमम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख, प्रोसीड ऑफ वन शेयर हो जाएगा 9 रुपया, तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 2 लाख अपॉन 9, दैट इज जो निकाला था वो 2222.22। As fractional shares are not permitted, तो minimum number of shares to be issued is इतना। The shares are to be issued on a multiple of 50, 50 के मल्टीपल में करना है। नेक्स्ट हायर फिगर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 50 इज 22250, यानी कि जो मैंने बोला था मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एज सच केस इतना ही होगा। ओके, फ्रेश इशू एट प्रीमियम एंड मिनिमम फ्रेश इशू। द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ shares when fresh issue is at premium should be handled very carefully. Minimum shares
Minimum fresh issue cannot be calculated unless one knows the profit available for replacement of preference shares, and the profit available for replacement cannot be determined unless one knows the portion of profits available for redemption which is required for paying premium on redemption. To tackle this, assume that profits available for redemption is not required for paying premium on redemption of preference shares. In other words, it means that securities premium including premium on fresh issue is comparatively more than premium on redemption. If the above assumption holds good, minimum number of shares can be calculated in a simple manner without use of equation. But if above condition does not hold good, then an equation is used to determine the minimum number of shares. Minimum fresh issue to provide funds for redemption. Besides ensuring compliance with section 55, the fresh issue of shares is made to provide funds for making payment to preference shareholders. To calculate minimum number of fresh shares to be issued to provide funds, amount payable to preference shareholders is compared with funds available for redemption, and the balance of funds to be raised by fresh issue of shares are calculated. The amount to be raised is divided by the issue price of the shares, amount payable by shareholder including premium if any on fresh issue, to compute the minimum number of shares to be issued. Okay, that is how it is done. उसके बाद है हमारे पास इलस्ट्रेशन 5, इक्विटी शेयर लाइबिलिटीज़ है। शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल में 290, रिजर्व एंड सरप्लस में 48,000, यानी कि हम लोग इतना ही बस यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट को लॉक करने के लिए। करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट एंड करंट एसेट में कैश एंड इक्विवेलेंट्स। ओके, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 रुपी ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹225,000 एंड 100 रुपी ईच प्रेफरेंस शेयर्स है 65,000 जो हमारे पास है इशूड ऑन इतना। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। ओके, रिजर्व सरप्लस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। इसके कारण जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रीमियम 10%, प्रीमियम ऑफ 10% पे आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो। ओके, द कंपनी डिसाइडेड सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट, आप सेल करोगे सारे के सारे इन्वेस्टमेंट 18,500 टू जो है आप इन्वेस्टमेंट को इतना में बेच रहे हो, ठीक है, ये वाला। तो फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000, आपको बैंक बैलेंस छोड़ना है 12,000, इससे भी 12,000 माइनस कर देना, 31,000 से माइनस कर देना। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 रुपी ईच टू रेज बैलेंस, जो कि बैलेंस बच जाएगा ये सब यूज़ करने के बाद, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह को यूज़ करने के बाद वो आप जो है 50 रुपी ईच मिनिमम आप इशू कर देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 37,500 फॉर एप्लीकेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन 750 शेयर्स, आप 750 शेयर्स कर रहे हो 50 रुपीज़। आप देखो पहले वर्किंग नोट देख लो। अमाउंट पेएबल ऑन रिडम्पशन है 65,000, यहाँ पे देख लो 65,000 है, 65,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, तो 65,000 प्लस 10% यानी 65,000 प्लस 10% ऑफ 65 यानी कि 71,500 हमें कलेक्ट करना है। आप माइनस कर दो इसमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि आपको मिला 15,000। अवेलेबल बैंक बैलेंस 31 में से मैंने बोला 12,000 को माइनस करने, देखो 31 में से मैंने बोला 12,000 को माइनस करने, जो आएगा वो माइनस कर दो 19,000। अब हमारे पास बचा 37,500 रुपीज़, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हो जाएंगे। इसको डिवाइड कर दो 50 रुपये से, क्योंकि हमें चाहिए 50 रुपये का ईच शेयर, तो हमें आ गया 750 का शेयर, 750 शेयर्स हमें इशू करने हैं। तो वर्किंग नोट इज़ वेरी एसेंशियल बिफोर मेकिंग द क्वेश्चन। अब हमें पता चल गया कि हमें कितना बेसिकली इक्विटी शेयर को इशू करना है, तो हम लोग उस तरीके से करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो आ गया, ठीक है, 750 शेयर्स पे 50 रुपये का शेयर। ये देखो बेसिकली कैसे आया, 750 इंटू 50 किया हमने। 50 क्या है, 50 रुपी ईच में दिया हुआ इसलिए किया। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन हमें 2 एंट्री बारी है, 2 एंट्री है, आप एक भी मार सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 37,500 हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो कि 10% था तो 6,500 हो गया। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 71,500। बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि 15,000 है बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें 3,500 जो लॉस लगा, वो लॉस क्या में, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो हमारा इन्वेस्टमेंट था 18,500 का, बट हमने बेचा कितना, 15,000 का, तो हमें इतना का लॉस हुआ है। बैंक अकाउंट में 15,000 हमें इन्वेस्टमेंट बेच करके मिला, इन्वेस्टमेंट बेचा तो 18,500 टोटल आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, हमने प्रॉफिट को लॉक किया, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट यहाँ पे 48,000 बता रहा है ना, उसमें से हमने लिया 27,500। देखो फॉर ट्रांसफर टू CRR आउट ऑफ विजिबल प्रॉफिट्स एंड अमाउंट इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि 65,000 में माइनस गया 37,500। ये जो हमने इशू कर दिया ना, जो बचा उसको लॉक करेंगे ना, लॉक किसको करेंगे,
करेंगे 48,000 में से करेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आप पेमेंट करोगे तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा 71,500, यानी कि ये वाला भी अमाउंट मिलेगा और हमें मिलेगा कौन सा वाला अमाउंट, हमें मिलेगा ये वाला अमाउंट भी मिलेगा। ओके, तो आप देख लो 37,500 भी मिलेगा और हमें मिलेगा 27,500 वेट दिस इज़ 71,500। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिला, देखो सबसे पहले तो हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो 15,000 यहाँ पर आया, उसके बाद प्रीमियम भी चाहिए था, इशू किया इसको, तो ये इसको मत देखो, ये और ये मिला। तो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, इफ़ वी ट्राई टू कैलकुलेट इट, हाउ मच इज़ इट, वुड वी बी एबल टू फाइंड इट। यहाँ पर तो 0 0 1 0 7 7 14 15 16 17 18 19 20 3 4 5 6 7 8, हमारे पास तो ये क्या आ गया, ओके। एनीवेज हम लोग देख सकते हैं कि 65,000 में माइनस किया 37,500, तो 27,500 तो प्रॉफिट को लॉक करना ही था। ओके, डोंट लुक एट ईयर, ये पता नहीं क्या हो गया। एनीवेज हम लोग देख सकते हैं कि फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 65,000 माइनस 37,500, 27,500 आउट ऑफ दिस 48,000। ठीक है, 37,500 हमने इशू कर दिया है ये को इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को हमने वापस करना 71,500, जिसमें से इन्वेस्टमेंट मिला 15,000 और हमें बैंक बैलेंस भी यूज़ करना है। ओके, बैंक बैलेंस भी हमें यूज़ करना है, तो बैंक बैलेंस भी हमें यूज़ करना है जो कि है 31,000 में माइनस कर दो 12,000 को। देखो 31,000 में माइनस करना है 12,000 को, आपको बैंक बैलेंस छोड़ना है, तो वो भी आप यूज़ करोगे वो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक सेम अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रीमियम रिडम्पशन, जो प्रीमियम रिडम्पशन उसको राइट ऑफ करा 65,500 वर्किंग नोट आई हैव टोल्ड यू। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट्स। अनदर मेथड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज पर द कंपनीज एक्ट इज टू यूज द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स इन प्लेस ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स वेयर शेयर्स आर रिडीम्ड by utilizing distributable profits in amount equal to the face value of shares redeemed is transferred to the CRR account by debiting the distributable profits. In other words, some of the distributable profits are kept aside, यानी कि प्रॉफिट को लॉक करते हैं ताकि वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके डिविडेंड के फॉर्म में किसी शेयर होल्डर को। प्रॉफिट और पोर्शन ऑफ प्रॉफिट कैन बी प्रॉफिट्स और अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो यस, तो प्रॉफिट और अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी अदरवाइज लीगली डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। In this connection, the provision of the Companies Act 2008 state that when any such shares are redeemed otherwise than that of the out of proceeds of fresh issue, there shall be out of profits which would otherwise have been available for dividend out of divisible profit for transfer reserved to the CRR account sum equal to the nominal amount of shares redeemed. Not only divisible profits can be used to create CRR, non-divisible profits cannot be used for this purpose. Advantages क्या होते हैं इससे? Advantages होते हैं no change in the percentage of equity shareholding of the company and surplus funds can be used. Disadvantages होते हैं हमारे redemption of preference shares but capitalization of undistributed divisible profit होते हैं हमारे पास accounting is that there will be reduction in the liquidity or assets may need to be sold such investment. liquidity में reduction हो जाएगा, फिर assets may need to be sold as such investment, जो कि पहले में हुआ था। अकाउंटिंग एंट्रीज हमारी प्रॉफिट को लॉक करने के जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एनी अदर डिविजिबल प्रॉफिट टू CRR, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, पेमेंट करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम प्रेफरेंस, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। इसके बाद है हमारे पास इलस्ट्रेशन 6 विच इज़ शेयर कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपी ईच, 4 लाख हो गया, 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हमें इसको ही देखना है। ओके, 1 लाख रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व है 50,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम है इतना, जनरल रिजर्व है हमारे पास 75,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 35,000। सो विच वन वी आर गोइंग टू यूज़? हम लोग यूज़ करेंगे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और जनरल रिजर्व को। ठीक है, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिडीम करेगा पार पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व 1 जनवरी को। देखो जनवरी 1 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कि है 1 लाख देखो 40,000, ये नहीं, ये देखो 1,000 10% वाला 100 रुपी तो 1 लाख रुपया, इसको रिडीम करेंगे।
एक लाख प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एक लाख अमाउंट पे कर दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हमने 1 लाख लॉक कर दिया प्रॉफिट में। नोट क्या करना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर अंडर ट्रांसफर ऑफ CRR। कैपिटल रिजर्व और जो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होगा उसे हम लोग यूज़ नहीं करना है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस shares by combining of fresh issue and capitalization of undistributed divisible profits. A company can redeem the preference shares partly from the proceeds from new issue and partly out of profits. यानी कि या तो न्यू इशू कर दो या तो आप प्रॉफिट को लॉक कर दो। In order to fill the gap between the face value and redeem and the profits of new shares, a transfer should be made of the distributable profits, profit and loss, general reserve, other reserves and capital. Amount to be transferred to CRR, face value of share redeem, उसमें लेस कर दो proceeds from new issue जो मिला वो। Proceeds to be collected from new issue, उसमें face value of shares redeem डालो, लेस कर दो profits available for distribution as dividends. The term proceeds from fresh या new issue shall be interpreted as the amount credited to share capital in case of issue at par, the amount credited to share capital in case of at premium, though premium is regarded as proceeds because it is, if it were to be treated as such, the transfer of distributable profits to the capital redemption reserve would be lower by the amount of the premium received. Amount received है हमारा debited to cash or bank in case of issue of discount. Section 53 of the Companies Act 2013 prohibits issue of shares at a discount except in case of issue of sweat equity shares as outlined in section 54. Illustration 7 है C Limited had 3000 12% redeemable preference shares of 100 rupee each fully paid up है। ओके 3000 है 12% redeemable preference shares of 100 rupee each fully paid up. The company had to redeem these shares at premium of 10% का प्रीमियम पे रिडीम करना था। It was decided कि आप 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपी ईच एट पार को इशू करो, फिर 14% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपी ईच को इशू करो। क्या हमने किया देखो, इशू फुली सब्सक्राइब था, ऑल अमाउंट्स वर रिसीव्ड इन फुल। तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 कैसे आया? 25,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का आपने किया, तो बैंक टू 14% डिवेंचर्स आपने किया। इसमें 2 एंट्री भी हो सकता था, हमने 1 एंट्री मारा। बैंक टू 14% डिवेंचर्स 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 50,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये हमारा आ गया जो है अमाउंट जो पेबल है रिडम्पशन ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर होल्डर के अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,30,000 जो कि बीइंग द अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में जो डाला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ अकाउंट अगेंस्ट P&L अकाउंट। इसमें वर्किंग सिंपल है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड है 3 लाख, जिसमें से हमने प्रोसीड किया न्यू इशू से 2,50,000, तो टोटल बैलेंस 50,000 का ही हमें लॉक करना था प्रॉफिट को। ओके, आई होप कि आई हैव टोल्ड यू द थिंग, ठीक है। Illustration 8, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज पेड अप, 1,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपी फुली पेड अप, यानी कि 1,000 तो 1 लाख हो गया हमारे पास। ओके 1 लाख हो गया ना हमारे पास। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस टूड एज जनरल रिजर्व है 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड 10,000 है। सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,000। देखो अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर, यानी कि 5,000 तो फ्री है ना, तो 5,000 हम लोग यूज़ करेंगे। कैश एट बैंक 98,000, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना प्रीमियम 10% पे, पर्पस ऑफ रिडम्पशन डिडक्टेड सम ऑफ 20,000 एडिशनल। देखो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 कैसे, क्योंकि हमने मिनिमम जो है देख लेना कितना वर्किंग नोट में, आई होप कि दिया। ओके, फेस वैल्यू शेयर्स रिडीम का 1 लाख है, लेस करो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। जनरल रिजर्व में हमारे पास 60,000 यूज़ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास 10,000 सेट असाइड फॉर एडजस्टिंग प्रीमियम पेएबल, 10,000 तो प्रीमियम पे जाएगा ही ना। ओके, तो 10,000 इसमें, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस का 5,000 तो फ्री था ना, तो 5,000 ये सारा को इसमें माइनस कर देना, तो यू विल बी गेटिंग 25,000। 25,000 कहाँ से लाएंगे? ये सब तो प्रॉफिट को लॉक करके हो गया, बट ये हम लोग करेंगे इसका इशू करेंगे, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 10 हमें 2,500 इशू करना पड़ेगा। दैट इज वाई वी डिड इट। उसके बाद प्रॉफिट को लॉक करने की एंट्री जो हमने बताया वो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रीमियम भी 10,000 टू प्रेफरेंशियल 1,10,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ करने की एंट्री। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड सफिशिएंट फंड और रिडम्पशन ऑफ पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर्स इफ द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट इट इज डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर पार्टली कॉल्ड अप। अगर पार्टली कॉल्ड अप है तो इट इज अज्यूम्ड दैट द फाइनल कॉल ऑन दीज शेयर्स आर डिमांडेड एंड रिसीव्ड बिफोर प्रोसीडिंग द
ऐसा मान लिया जाता है कि फाइनल कॉल हम लोग मांग लिया और आ गया पैसा. इफ इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप शेयर्स इज प्रोवाइडेड देन इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड. यानी सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप ही रिडीम किया जाएगा और पार्टली पेड अप शेयर्स को छोड़ दिया जाएगा. द कंपनी कैन फॉरफीट द शेयर्स. फॉरफीट किया जा सकता है अगर कॉल मनी नहीं रिसीव होता है कंपनी के इन स्पाइट ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू पे द सेम वाया रिमाइंडर्स. बैलेंस शीट XYZ कंपनी का इंटर आलिया इंक्लूड्स. देखो 50,000 है प्रेफरेंस शेयर्स, 35 लाख हो गया, 70 रुपीज़ पेडअप है. ओके 100 रुपीज़ तो 30 रुपीज़ तो अभी बाकी है ना, 30 रुपीज़ तो बाकी है अभी. ओके 30 रुपीज़ तो बाकी है. 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो हमारा 100 लाख हो गया. ओके सिक्योरिटीज प्रीमियम है 5 लाख विच विल नॉट बी यूज. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे 20 लाख. जनरल रिजर्व कर लेना. बैंक 15 लाख है. अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल इतना 5% पर प्रीमियम पे 5% का प्रीमियम भी जाएगा. ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपये की. आप इक्विटी शेयर्स बोल दिया तो इक्विटी शेयर्स ही पहले हम लोग करेंगे और वो भी 10 रुपये के प्रीमियम के साथ. 20 रुपया पिंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, 35 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस जो है वो 1 जनवरी को. द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड. द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन इतना नसा. द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग नेसेसरी कंडीशंस सेक्शन 55 और यू आर आस्क्ड टू पास द इग्नोर डेट कॉलम. ओके डेट कॉलम मत बनाना. देखो 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख to for final call made on preference shares at 30 rupee each to make fully paid up. Bank account debit to 8% preference share final account call account. Bank account debit to 8% preference share final call account जो कि है 15 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो हमने कॉल किया एप्लीकेशन पे 20 रुपये का. ठीक है उसके बाद कितना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये मिल गया रिसीव का, ये ड्यू का, ये रिसीव का. इक्विटी अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमने अलॉटमेंट पर ड्यू मांगा 17,500, 12, 50 और 5 लाख. ठीक है अब ये जो था ड्यू का अब ये मिल गया रिसीव हो गया. बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी शेयर अलॉटमेंट जो मिल गया. जनरल रिजर्व जो हमने बोला जनरल रिजर्व ही हमें सिर्फ यूज़ करना है और दैट टू हमारे पास 50 लाख है लेकिन हम लोग पूरा 50 लाख नहीं यूज़ करेंगे. हम लोग यूज़ करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है. रिक्वायर्ड कितना है हमने 10 लाख तो इक्विटी शेयर से इशू कर लिया. ओके 50 लाख तो इक्विटी शेयर से इशू कर लिया. 50 लाख देखो ट्रांसफर ऑफ सीआर द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू दैट इज 50 लाख था. 50 लाख माइनस 10 लाख माइनस 12 50 यानी कि 2750. ठीक है 8% प्रेफरेंस शेयर टोटल होना चाहिए 50 लाख. तो वही जो हुआ वो हम लोग करते गए. प्रीमियम ऑन 2,50,000 तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इतना और 5% प्रीमियम था तो वो भी हमने दे दिया जिसको हम लोग एंड में राइट ऑफ करेंगे. इफ़ यू कैन सी हमने किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 50 to 550 और टू बैंक. उसके बाद हमने P&L था नहीं जनरल रिजर्व था. जनरल रिजर्व से हम लोग राइट ऑफ करेंगे नो मैटर व्हाट. नोट हमने करना है कि ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड डिविजिबल प्रॉफिट्स इट विल नेसेसरी टू ट्रांसफर द CRR अकाउंट ऑन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट प्रीपेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ फेस वैल्यू लेस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन. रिडेम्पशन ऑफ फुल्ली कॉल्ड अप redemption of fully called but partly paid up preference shares. The problem of unpaid calls on fully called up shares may be studied under the following categories. When the amount of calls in arrears is received by the company. If the amount of unpaid calls is received by the company before redemption, the entry passed is under bank account debit to calls in arrears. यानी कि अगर जो अमाउंट है कॉल्स इन अरियर का वो मिल जाता है कंपनी को तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स. आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर द शेयर्स बिकम फुल्ली पेड अप. वो शेयर तो फुल्ली पेड अप हो गए ना और अरियर मिल गया तो कंपनी ना प्रोसीड करता है रिडम्पशन ऑफ नॉर्मल कोर्स में. अगर फॉरफीट कर रहे हो शेयर को तो इन स्पाइट ऑफ रिसीविंग अ प्रॉपर नोटिस फ्रॉम द कंपनी द शेयर होल्डर्स जो है वो फेल कर जाते हैं पे करने के लिए अनपेड कॉल्स को तो BOD में डिसाइड टू फॉरफीट उसको फॉरफीट करता है. फॉरफीचर में आप लोग जानते हो क्या क्या एंट्री होता है. इंस्टेड ऑफ इशूइंग फॉरफीटेड शेयर्स बिकॉज रिडम्पशन ऑफ दीज शेयर्स इज ड्यू टू इमीडिएटली और नियर फ्यूचर इन केस जनरल एंट्री फॉरफीचर्स में नॉर्मली जो होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीटेड. यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहा है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ही यहाँ पर होगा ओनली रिलेटिंग टू द शेयर्स टू बी फॉरफीटेड. जो कॉल्ड अप अमाउंट है बस वही होता है यहाँ पे डेबिट. ठीक है तो वो तो शेयर्स में भी होता था इक्विटी शेयर्स में भी. ओके जो नहीं मिला वो और जो मिल गया है टू शेयर्स फॉरफीटेड में. अमाउंट एक्चुअली कलेक्टेड ऑन शेयर्स फॉरफीटेड दिस विल बी इक्वल टू द बैलेंसिंग अमाउंट. बैलेंसिंग अमाउंट के इक्वल होगा जो ये दोनों का बैलेंस आएगा वो नोट करना है. बट इट शुड बी नोटेड इफ इन दिस केस दैट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड विल बी रिड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स एज सो फॉरफीटेड. फर्दर सिंस द प्रेफरेंस शेयर्स आर गेटिंग रिडीम्ड द फॉरफीटेड शेयर्स विल नॉट बी रीइश्यूड एंड हेंस द बैलेंस इन द सेम इज फॉरफीटेड शेयर्स इज फॉरफीटेड अकाउंट एंड शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में वो चला जाएगा जो हमारा बैलेंस बचेगा जो नॉर्मली होता था.
इलस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स इन इलस्ट्रेशन 9 में जो इलस्ट्रेशन दिया गया है, 9 में कौन सा इलस्ट्रेशन है, 9 में जो इलस्ट्रेशन, ये वाला इलस्ट्रेशन है, इसी में अब फर्दर एज्यूमिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है 20,000 फेल टू मेक द पेमेंट फाइनल कॉल सेक्शन 55 ईयर कट। ओके, तो 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 15 लाख टू 8% ये बैंक अकाउंट डेबिट ऑल्स इन अरियर्स जो है हमारा वो आ जाएगा 60,000 का। उसके बाद फॉर रिसीप्ट द फाइनल कॉल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग अब फॉरफीट करें टू शेयर कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर जो मिल गया वो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू नॉर्मली जो हो रहा है बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जनरल रिजर्व में हम लोग कैपिटल रिजर्व डाल दिया 8%, इसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर टू बैंक अकाउंट, इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को एंड वी हैव डन इट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व जो हमें प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व को राइट ऑफ किया वो शेयर फॉरफीट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। नोट करना है कि अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम को छोड़ के ऑन द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन शुड बी कंसीडर्ड एज for calculation of proceeds of fresh issue of shares। thus proceeds of fresh issue of shares that is 2250 जो कि 10 लाख का एप्लीकेशन मनी प्लस 12,50,000 रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट टुवर्ड्स शेयर कैपिटल विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, उसके बाद ट्रू फॉल्स लेट अस स्टार्ट, उसमें यहाँ पे है तो when shares are redeemed by utilizing distributable profits an amount equal to the face value of shares redeemed is transferred to the capital reserve account by debiting the distributable profits। no, it is false। Q false है when the shares are redeemed by utilizing distributable profits an amount equal to the face value of shares redeemed in the transfer to capital redemption reserve, ना कि capital redemption reserve में account by debiting the distributable profit। ठीक है, इसे कहते हैं प्रॉफिट को लॉक करना। ओके, अ कंपनी हु प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट नॉट यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बिल्कुल सही, ट्रू है ये। सेक्शन 133 के अनुसार जो भी बना रहा है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज नहीं करना। द बैलेंस इन द फॉरफीटेड शेयर्स कैन नॉट बी बैलेंस इन फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। नहीं, कैपिटल रिजर्व में हम लोग डालते हैं। देखो, द बैलेंस इन फॉरफीटेड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांसफर कैपिटल, इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। देख लो, कैपिटल रिजर्व में डाले हैं, देखो है ना। ओके, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यस इट इज ट्रू, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए यूज होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, बाकी सबके लिए यूज होता है। एस लिमिटेड इशू किया 10% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये ईच एट पार विच आर द रिडीमेबल एट द प्रीमियम 10%। ठीक है, 10% पे रिडीमेबल है तो 10% का प्रीमियम भी होगा, यानी कि 10% इसका देखो 2,000 इंटू 100 2 लाख हो गया, तो इसका हो जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000 हो जाएगा हमारा प्रीमियम। फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन द कंपनी इशू किया 1500 इक्विटी शेयर्स 100 रुपये ईच का, 20% पर शेयर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, अमाउंट ट्रांसफर टू द कंपनी टू द देखो सर बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम रिडम्पशन टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 2,20,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर हमारा 15 है और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो 50,000 हमारा जाएगा। यहाँ पे देखो 2 लाख माइनस 150 50,000। विद द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हम लोग अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट को यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सब यूज़ करेंगे। ओके, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ लॉसेज ऑफ द कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यूज़ कर लो बट लॉसेज नहीं करना है। कैन बी यूटिलाइज फॉर रिडम्पशन, लॉसेज करने के लिए राइटिंग ऑफ लॉसेज के लिए आप पीएनएल का यूज़ करते हो, फ्री रिजर्व का यूज़ करते हो, जनरल रिजर्व का यूज़ करते हो। ओके, आई होप कि ये क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर अमाउंटिंग टू 2 लाख है, ऑलरेडी इशूड कितना रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, इशूड 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर, देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में तो जो अमाउंट आपका रहेगा 2 लाख माइनस 1 लाख, आप इसमें जो है प्रीमियम का अमाउंट नहीं इंक्लूड करते हो। ओके, तो ये नॉट इंक्लूडेड है, नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो आपका 1 लाख आ जाएगा, 2 लाख माइनस 1 लाख इज 1 लाख। Theoretical questions are there, practical questions are there, which are same as we have done in the illustrations in the books. And this is the practical question, which is only one। उसके बाद होता है redemption of debentures, बट उससे पहले हम लोग एक बार नोट्स देख लेते हैं, which are just की illustrations वगैरह दिए हुए हैं। And these are all about illustrations of the redemption of preference shares। ठीक है, these are the things। Okay, so we will be doing the redemption of preference, redemption of debentures in the next class। Okay, bye।